Okay. हो गया हाँ? हाँ जी, हाँ जी. Good morning, students. Greetings from School of Open Learning. My name is Shali Khanna, and since I have been taking your classes from past 2 days, and this is our last class, so I'll be covering the topics which I left, as well as I'll be discussing about aggregate supply and aggregate. So let's get started. I do hope you are able to see the presentation which is here. Yeah. I've already covered the basic information about aggregate demand and aggregate supply in my first lecture, but I'll be doing the same in an extended version. So now let's get started. What do you mean by aggregate demand and aggregate supply? One second. Yeah. So aggregate demand and aggregate supply. By aggregate demand, in microeconomics we have studied demand means anything which a consumer desires to have. So this is an aggregate demand. Aggregate demand means we are talking about the macroeconomic concept. Aggregate demands relates to total demands of goods and services produced in an economy for consumption, investment, government and net exports. We have already discussed that aggregate demands has four components: consumption, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment, as well as net export. So this is the same, but we are doing income and employment method gains. So we're discussing aggregate demand, and here the components will be consumption, investment, government and net exports. So AD is equals to C plus I plus G plus net exports. Net exports means excess of exports over import. So the difference between the exports and import is called net exports. I hope you are clear with the definition of aggregate demand. Aggregate demand is the total demand of goods and services produced in an economy for consumption, investment, government and net exports. Entire demand. Okay. Now the aggregate supply. Aggregate supply refers to total value of goods and services produced in an economy. द इंटायर गुड्स एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे. इसको हम टोटल आउटपुट भी बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. नाउ वी नो aggregate demand is represented by C plus I plus G plus net exports, and AS, that is aggregate supply, is represented with the letter Y. Y means income. Now at the equilibrium level, if we plot the diagram of aggregate demand as well as the income, we'll get an equilibrium point at which E. Now I know you are not able, you're not familiar with this diagram before, and you don't know how is aggregate demand turning out to be at point M and not at point 0. Discussing in few slides after this, but just look at the diagram. In this diagram, you can see there is an aggregate demand curve which is starting from M, and there is an aggregate supply curve which is Y, and this Y curve is 45-degree angle. Always remember, aggregate supply curve is 45-degree line. If you will not draw 45-degree line, it will not be considered an aggregate supply. Aggregate supply is 45-degree line because income is either consumed or is spent. So amount of income consumed and spent. So one side is 45 degrees consumed and 45 degrees spent. So we are considering the income to be 45-degree line. And that is an aggregate demand. अब equilibrium level पे ऐसा होगा, aggregate supply will be equal to aggregate demand. If aggregate supply and aggregate demand will not be equal, any excess of aggregate demand or aggregate supply will affect the inventory level. Let us say if there is an excess of aggregate demand over aggregate supply. If the demand is more as compared to supply, we can say that people are demanding much more than which is being produced. So inventories will run out of the stock. As a result, the price level will rise, leading to corresponding point at E.
And similarly, if the aggregate demand is less than aggregate supply, then firms will be overstocking its inventories. If the firms will be overstocking its inventories, then the point will be below E. That is, it will be plotted by 0, 0, M and E. This point will be the amount of inventories which is increasing because aggregate demand is more than aggregate supply, and the point above at that point the inventories level will be lessening its produced output. So at only point E, the equilibrium level will be maintained. Otherwise, below E price level बढ़ता जाएगा and after E price level कम होता जाएगा क्योंकि inventory का stock बहुत ज़्यादा है and there is no demand. So this is the first equilibrium level ka method, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. This is known as aggregate demand and aggregate supply approach. And second method is saving and investment approach. Savings and investment approach, it can be easily calculated and numerically also it can be expressed as AD equals to AS. और वी आर कंसिडरिंग ओनली टू सेक्टर मॉडल, तो हम एडी के अंदर गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. वी आर कंसिडरिंग ओनली सी प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स जो एएस का है. एंड कंजम्पशन एंड कंजम्पशन आर कैंसल, देन वी गेट आई इज इक्वल्स टू एस, दैट इज इनकम, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स. Now, this is also an equilibrium level. So any point where there is the disequilibrium between investment and savings will in turn affect the aggregate demand and aggregate supply approach. Economy will not function at a point where the investment will be more or savings will be more, as the point given by KG. If this disequilibrium will be there in the market, then the price level will rise and corresponding effects on the inventories which has been seen above will be witnessed again. For example, if the investment will be more than savings, then aggregate demand will be more than aggregate supply. If the demand is more than aggregate supply, then price level will rise, leading to corresponding rise in the price level and inflation in the economy. And similarly, if the aggregate supply will be more than aggregate demand, or savings will be more than investment, so people are not spending much, they are savings. If they are saving, then aggregate supply is quite high compared to demand, and if this is the situation, then price level will fall. So I hope the equilibrium level is quite clear. We have talked about aggregate demand. Aggregate demand is the total demand for goods and services produced in an economy for consumption, investment and government, as well as net export. AD equals to C plus I plus G plus net exports. Aggregate supply is the total value of goods and services produced in economy. It is also known as total output, which is represented by Y. So S is equals to Y. At the equilibrium level, we have talked about two approaches, that is aggregate demand and aggregate supply approach, as well as saving and investment approach. Aggregate and aggregate supply approach equilibrium corresponds to point E, which can be seen in the diagram on the left side. If any point at which AD will be more than aggregate supply, demand will be more than supply. So firms will not be in the capacity to produce more. As a result, the price level will rise, and corresponding this point can be seen as OME. That is, at this triangle reflecting OME is the point at which aggregate demand is more than aggregate supply, and point beyond E reflects aggregate supply is more than aggregate demand. So point above E will lead to overproduction, and point this is less production, leading to rise in the price level, and automatically the price level will shift upwards. And similarly, if the point is beyond E, then it will lead to fall in the price level as companies are overstocked their products, and due to which the price level will fall in the economy. And second approach we talked about was savings and investment approach. At savings and investment approach, we can calculate numerically also, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. Aggregate demand का formula हो गया C plus I. This is closed economy, so only C plus I, not government and net exports. Aggregate supply के अंदर आ गया C plus S, because income is either consumed or saved. That is why the aggregate demand, aggregate supply curve की line 45 degree पे थी.
So consumption से consumption cancel हुआ and we got income. Investment is equals to savings. So equilibrium level दो तरह से होके दो approaches हैं, aggregate demand and aggregate supply, savings and investment. But consumption function में दो तरह की consumption थी. Autonomous consumption थी और एक induced consumption थी. और autonomous consumption वो level of consumption होती है income level is zero. In spite of the fact income is zero, consumption can never be zero. For example, some of you might not be earning right now. You might not be having income by this time period. Is your consumption level zero? No, your consumption level is not zero because probably you're getting money from the parents, and similarly consumption किसी की भी zero नहीं होती. Even the beggars have their consumptions. So consumption level is never be zero. Autonomous consumption level is never be zero, and it is not related to income level. And induced consumption is related to income. As the income level goes up, correspondingly consumption also rises. अब consumption function का एक equation है. Equation is consumption equals to C dash plus BY. C dash refers to autonomous consumption, as we have discussed कि जिस point पर income level zero होगा, तो this is autonomous consumption, plus BY. B means MPC. MPC means the change in consumption due to change in income. For example, earlier you are consuming, earlier your consumption was 50 and your income was 100. Now your consumption moves to 100 and your income moves to 200. If you calculate the difference, that is 50 और 100 हुआ consumption, that is 50 का difference, और income हमारी difference हुआ 100 का, क्योंकि 100 200 minus 100 we got 100. और MPC के अंदर हम क्या करते हैं, change in consumption. Change in consumption कितना था, 50 divided by 100, we got it as 2. So MPC हमारा आ गया 1/2. MPC reflects कि consumption किस level पर change हो रही है जैसे जैसे income increase हो रही है. We understood 2 points in the consumption function, that is autonomous consumption and induced consumption. Autonomous consumption refers to the consumption which occurs even if the income level is zero, and induced consumption is consumption which is dependent upon the income level. As the income level increases, the consumption also rises. Now we can see the diagram. On the right hand side, we can see there is break-even point, which is refers to as B. This break-even point will occur at a point where the autonomous consumption equals hogi income ke. That is, there will be no BY. The point in easy terms, we can say the consumption will be equals to income. There is no savings. Is that clear? Below B, all the triangles showing 0, C and B, this point reflects consumption जो है autonomous है, and after B the consumption is autonomous as well as induced. I hope this is clear. Consumption function का फॉर्म हो गया, C is equals to C dash plus B by. Autonomous consumption को हम डिनोट करते हैं C dash से, और B को हम डिनोट कर रहे हैं MPC से, that is marginal propensity to consume, which means change in consumption due to change in income. और एक MPC एक APC भी होता है. APC is the ratio of consumption to income. अगर हम कंजम्पशन और इनकम की सिर्फ रेशियो लिखे, फॉर एग्जांपल योर कंजम्पशन इज 50 एंड योर इनकम इज 100, इफ वी डिवाइड 50 by 100, दिस इज APC. MPC means change in consumption due to change in income. If earlier your consumption was 50, then it spikes up to 100 as your income level increases from 100 to 200. Now income में change कितना आया, 100 का, as the income levels moves up from 100 to 200, and consumption level के अंदर जो change हुआ वो 50 से 100 का हुआ, 50 का change आया. So if we divide 50 by 100, we get it MPC. I hope this is clear. Now we are moving further, that is saving function. Now what do you mean by savings? I already told you that is income is either consumed or is saved. The amount of income which is not consumed is saved.
the amount, and we can see this is what is written in the first line, that amount of income which is not spent is saved, as income is either saved or consumed. Now savings are directly proportional to income. ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे कोई autonomous savings exist करे, but autonomous consumption जरूर exist करती है. So savings जो होंगी वो सारी induced हैं, because it is related to the income, directly proportional to income. As the income level increases, the savings also increases. So now we can see the saving function. Saving का फॉर्मूला वही हुआ कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और इज सेव्ड. तो जो इनकम कंज्यूम्ड नहीं, इट इज सेव्ड. अब हमने कंजम्पशन में जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था सी डैश प्लस बी वाई का, सी डैश प्लस बी वाई को प्लॉट कर दिया, पुट कर दिया. इसको पुट करने के बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल हमारे पास जो इक्वेशन आई, वाई सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. अब 1 माइनस बी, अभी पीछे हमारे पास आता था सिर्फ b, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस बी. 1 माइनस बी रेफर्स टू MPS और 1 माइनस MPC, और ये प्रॉपर्टी होती है MPS प्लस MPC इज इक्वल्स टू 1 एंड APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1 एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1. So 1 minus B है, that is 1 minus MPC, that is marginal propensity to consume, which is equals to MPS. तो ये MPS हमारा आ गया from this equation, and we have understood कि saving function का जो equation है वो है S is equals to minus C dash plus 1 minus B bracket Y. 1 minus B means MP, और इसके अंदर भी APS होता है. APS refers to the ratio of savings and income. For example, अगर income level increase हो गया 100 से 200 और savings हमारी increase हो रही है 20 से 30, तो savings के अंदर कितना difference? 20, 30, 10 का difference हुआ savings. और similarly income के अंदर कितना difference है? 100 से 200, तो difference हुआ 100. So if we divide 20 by 100, we will get MPS. Is it clear? Now looking at the diagram on the right side, we can see 45-degree line है which is called aggregate supply. Aggregate supply के साथ हमारा यहाँ पर, और हम इसको Y भी बोल सकते हैं. Now we have seen there is a curve which is plotted by C. C जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. कंजम्पशन फंक्शन मैंने भी पीछे भी बोला था, अगर ये B पॉइंट से ऊपर की लेवल की कंजम्पशन होगी, मतलब ऊपर बढ़ेगा तो इनकम लेवल इंक्रीज करेगी कंजम्पशन से ज्यादा, बट उससे पहले इनकम जो है वो नेगेटिव है एंड कंजम्पशन इज मोर. तो उससे पहले डिसेविंग्स होगी, जहाँ पे जिस पॉइंट गिवन पॉइंट के बाद हमारी इनकम इंक्रीज होनी शुरू होती है more than consumption. So we are able to save, and this point of savings can be seen by the diagram below, that पहले हमारे dis savings, now we have savings. Make sure you plot this diagram, make sure you draw this diagram as well as consumption function का diagram if the question is asked in your exams. Now let's talk about investment function. Investment के बारे में हम 2 दिन से already पढ़ रहे हैं. I do hope कि आप इरिटेट ना हो गए, बट इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज रिलेटेड टू इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो कहाँ अपने पैसे डालेंगे? मनी डिमांड के अंदर भी हमने कल पढ़ा था कि दे विल स्पेकुलेट देयर मनी और कीप इट देयर मनी, और पैसे लगा देंगे बॉन्ड मार्केट के अंदर या स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये बेसिक चीज तो समझ आ गई. इन्वेस्टमेंट में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट में बी इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस वही जिससे मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम लेवल, कि इनकम लेवल कितना चल रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, इट विल नॉट बी रिलेटेड टू दैट. एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विल बी रिलेटेड टू द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. With the change in income, that's why it's called income elastic. Induced investment is always income elastic, and autonomous investment is never income elastic. It is income inelastic. Autonomous investment is not sensitive to change in income. It is influenced by the rate of interest. Investment is influenced by the rate of interest. कि अगर rate of interest ज़्यादा होगा तो investment कम होगी, और invest अगर हमारी वो कम होगा तो ज़्यादा होगी. I hope this is clear.
इट इज रिवाइज वंस व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इज क्योंकि आगे हमको ये मतलब बहुत जरूरत है इस इक्वेशन को याद करने की ढंग से। तो एग्रीगेट डिमांड हुआ हमारा टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हुआ C+I+D + नेट एक्सपोर्ट। एग्रीगेट सप्लाई हुआ हमारा टोटल आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम लेवल। Move further, equilibrium level की दो अप्रोचेस हैं। दो अप्रोचेस कहते हैं इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच है एडी और एएस अप्रोच। एडी अप्रोच कहती है, एडी अप्रोच के अकॉर्डिंग वही है C+I+D और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर y। इक्विलिब्रियम लेवल पे AD विल बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई व्हिच इज y। जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन aggregate supply or the level of output in the economy, अगर demand ज़्यादा है और supply कम है तो inventories will run out of the stock and the price level will rise, and if the income level is more than aggregate demand or the aggregate supply is more than aggregate demand, we can see that कि यहाँ पर situation वो arise हो जाएगी जहाँ पे inventories will accumulate stock और the stock will rise when the factories will get burdened with the stock, so due to which क्या होगा, हमारी इन्वेंटरीज जो है ओवर स्टॉक कर जाएंगी, प्राइस लेवल फॉल कर जाएगा। सो देयर हैज टू बी इक्विलिब्रियम दैट इज AD इक्वल्स टू y। और दूसरी अप्रोच थी हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है कि AD इक्वल्स टू AS होता है, और इफ विल कैलकुलेट द अकॉर्डिंगली दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। Now let us look at consumption function. Consumption function is positively related to income. और कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन व्हिच एग्जिस्ट इवन इफ द इनकम लेवल इज जीरो, एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द कंजम्पशन व्हिच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। एज द इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन आल्सो राइजेस। इसके अंदर हमको पता लग गया C इज इक्वल्स टू C डैश प्लस B बाई C डैश जो हुआ वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ, प्लस B बाई B इज द MPC। MPC और APC के अंदर यही डिफरेंस है कि इसके अंदर हम रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम लेते हैं, बट उसके अंदर हम चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम लेते हैं। और इस डायग्राम के अंदर हमने ये भी देखा था, देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज एट BE। एट दिस पॉइंट इनकम लेवल इज जीरो, income level is exactly equals to the consumption, and beyond that point the consumption not increases as much that income is increases, so we get to save. And below point B there is autonomous consumption only and income level is negative, which leads to dis-savings. Dis-savings can be seen from the diagram in the right. This savings वो point होगा जहाँ पे income level will be negative and consumption level will exist, or the autonomous consumption level will exist. Saving function हमको बोलता है कि income is either consumed or is saved. If the consumption is not consumed, then it comes in savings. So savings का वही formula हुआ S is equals to y minus C, और savings के अंदर हमने y minus C dash minus by कर दिया, और सेविंग्स इज इक्वल्स टू आगे फर्दर सॉल्व किया तो माइनस C डैश प्लस 1 माइनस B ब्रैकेट y माइनस C डैश हुआ, दैट इज माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और 1 माइनस B मींस 1 माइनस MPC इक्वल्स व्हिच इज इक्वल्स टू MPS। आई होप दिस इज क्लियर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट भी हमारी दो तरह की होगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेवल हमारा इंक्रीज करेगा अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड। अब जो हमने पीछे इक्वेशन करी थी दैट इज AD इक्वल्स टू C+I+D प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, उसके अंदर से हम एग्ज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट जीरो। इकोनॉमिक्स में हम बार बार एज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए, तो अब इसके अंदर हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम कोशिश करें कि G और नेट एक्सपोर्ट्स को जीरो रखें, इकोनॉमी को क्लोज रखें, और देखें हमारा मल्टीप्लायर क्या आता है।
तो AD इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट भी एज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑटोनॉमस है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो हमने तीन चीजें एज्यूम करी है, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स दोनों जीरो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, और दूसरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही एग्जिस्ट करती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। AD के अंदर जो हम C कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, C डैश प्लस BY प्लस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ऑटोनॉमस है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डैश लगा दें। देखो पहले एक चीज समझ लो, इन दिस macroeconomics we have two kinds of variables, endogenous variables and exogenous variables. Endogenous variables वो variables हुए जो जिनको influence करते हैं inside factors, और exogenous variable वो variables हुए जिनको influence करते हैं या जो influence होते हैं outside factors. For example, C dash autonomous consumption कितनी है, it is not influenced by income. It is therefore not an endogenous variable, it is an exogenous variable. Similarly, autonomous investment भी जो है वो endogenous variable नहीं हुआ, वह exogenous variable हुआ। तो जितने भी autonomous investment और consumption है उन हम A से डिनोट कर रहे हैं और उसके अंदर ही डाल रहे हैं। A के अंदर आ गया autonomous investment भी और autonomous consumption भी, तो हमने A को डिनोट कर लिया C डैश और CY से। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे सिचुएशन क्या है, तो y इज इक्वल्स टू C डैश और I डैश को हमने A लिखा है प्लस by एज इट इज ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू y। अब अगर हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आंसर मिला 1/1 माइनस b इनटू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर वही C डैश प्लस I डैश। तो एग्रीगेट डिमांड का आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन निकाली कि y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस b इनटू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। This formula will be very useful for the upcoming slides. अब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं। कल हमने क्रेडिट क्रिएशन की बात की थी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर जब हमारा इनकम लेवल इंक्रीज होगा विच लीड्स टू फर्दर इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, और जो इनकम लेवल इंक्रीज होगा इट विल बी अफेक्टेड, और जो मतलब उसके अंदर जो रिजल्ट हो रहे हैं जो अफेक्ट करेगा उसको एक वेरिएबल, वो होगा MPS या MPC। MPC कैसे करेगा, कल हमने फॉर्मूला देखा था क्रेडिट क्रिएशन जब हम कर रहे थे, उसके अंदर एक 10,000 का अमाउंट था, उसके अंदर से हम कुछ अमाउंट रिजर्व करते थे और बाकी 10% हमने रिजर्व किया, तो 10,000 का 10% इज 1,000 और उसके अंदर बाकी हमने आगे लैंड कर दिया 9,000। बैंक्स ऐसे करते थे और 9,000 को फर्दर आगे आगे करते करते हम लैंड कर देगा, और जब हमने एंड में जाके देखा तो एंड में वी कुड मेक आउट दैट जो हमारा इनकम लेवल जो था वो इंक्रीज हो रहा था क्रेडिट क्रिएशन की वजह से, और वो जो इंक्रीज था इट वाज डिपेंडेंट अपॉन CRR रेशियो। अब मल्टीप्लायर के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की। तो यहाँ पर जो लेवल पे इनकम इंक्रीज होगी इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन MPS की वैल्यू, MPC की वैल्यू कितनी है। अगर MPC की वैल्यू लेट्स से 75% है तो हम 75% कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी हम आगे सेव कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा 75%। सो वी कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपीज की तो इंक्रीज इन इनकम 100। अब हमको पता चला कि हमारा कंजम्पशन का जो पॉइंट था दैट वाज 3/4 3/4 मीन 75%। 75%, अब 100 में से हमने 75% इंक्रीज इन कंजम्पशन हुआ, और ये कंजम्पशन इंक्रीज हुआ इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम। सिमिलरली 75 75 75 ऐसे ऐसे करते करते वी गॉट टू नो दैट जो हमारा इनकम लेवल है वो बढ़ गया 500 से, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी 600 और कंजम्पशन बढ़ गई हमारी 400 से। So I do hope this multiply concept is clear. Multiply के अंदर हम दो फॉर्मूलाज हैं हमारे। एक फॉर्मूला तो ये कहता है कि पहले डेफिनेशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी which in turn raises the level of output, employment and income. When the investment increases by certain amount, aggregate income is increased by multiple of that investment.
सो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हुआ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 100 की, जिसकी वजह से इनकम के अंदर चेंज आया 500। यही मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है एंड इट वाज फर्दर डिपेंडेंट अपॉन एमपीसी कितना है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना कर रहे हैं हम। सो देयरफॉर एक फॉर्मूला और भी है, K is equals to 1 upon 1 minus MPC which is equals to 1 minus MPC। पीछे भी हमने देखा था, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि MPC plus MPS is equals to 1, तो हम 1 minus MPC की जगह 1 upon MPS भी लिख सकते हैं। सो आई डू होप ये क्लियर हुआ मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। और पीछे जो हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनॉमस वेरिएबल्स लिए थे जिसके अंदर एंडोजेनस और एक्सोजेनस का कॉन्सेप्ट था, आई डू होप वो भी क्लियर हुआ। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने एज्यूम किया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और नेट एक्सपोर्ट जीरो है, और उसके साथ हमने एज्यूम किया कि हमारी इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हमने आई डैश कर दिया। जो भी चीजें ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस मींस दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम and it is affected by the outside variable. For example, autonomous consumption जो है वो income level से तो affected है नहीं, तो फिर वो किससे affect, तो वो outside factor से affected है। So therefore हम उसको autonomous बोलते हैं, और autonomous investment इन दोनों को क्लब करके हमारा आया autonomous expenditure, जिसको हमने A से डिनोट किया। तो y is equals to A plus by। Solving for y we got the formula 1 upon 1 minus b into a। ये 1 upon 1 minus b ही हमने मल्टीप्लाई में यूज किया, 1 upon 1 minus MPC। मल्टीप्लाई का लास्ट फॉर्मूला 1 upon 1 minus MPC। कंजम्पशन फंक्शन में मैंने बताया था c डैश प्लस बी वाई, तो ये b वही है। तो ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। अभी तक हम गवर्नमेंट सेक्टर को जीरो लेकर चल रहे थे और नेट एक्सपोर्ट्स को हमने इंक्लूड ही नहीं किया था। अब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम लेवल इन टू वेज। हाउ गवर्नमेंट विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल? इट विल अफेक्ट इट इन द टू वेज। या तो वो परचेज करेगा गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट भी तो परचेज करती है गुड्स और सर्विसेज, और दूसरा मेथड होगा टैक्सेस और ट्रांसफर्स। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडीज दे देगी या फिर टैक्सेस लगा देती है। टैक्सेस और ट्रांसफर्स हमारा इनकम लेवल को अफेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को दो तरह से अफेक्ट करती है, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स व्हिच अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनकम। ये दो मेथड आगे कैसे गवर्नमेंट हमारे इक्विलिब्रियम लेवल को अफेक्ट करती है, या तो परचेज करेगी या टैक्सेस और ट्रांसफर्स लगाएगी। डिस्पोजेबल इनकम जो होती है इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम। हमने पढ़ा होगा 12th क्लास में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बार निकालने को बोलता था। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती थी इट इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड और सेव। जो नॉर्मल इनकम होती है उसके अंदर से टैक्सेस और ट्रांसफर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अर्निंग, तो उनको पहले बोलते होंगे कि हमारी इनकम इतनी है, बट जब बाद में पैसे मतलब सपोज किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ विल पे यू दिस मच, बट जब सैलरी हाथ में आती है देन इट्स क्वाइट लेस। व्हाई इट इज लेस? बिकॉज इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर्स ऐड होते हैं और टैक्सेस माइनस होते हैं। So now let us look at the equation which is on the right side. Aggregate demand को अब हम 3 सेक्टर मॉडल के अंदर ले रहे हैं। ये 3 सेक्टर मॉडल काफी बार एग्जाम्स के अंदर आ भी रखा है कि पूछते एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सप्लेन करो यूजिंग 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हम नेट एक्सपोर्ट्स को नहीं लेंगे और सिर्फ 3 वेरिएबल लेंगे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सिर्फ यही लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल नहीं है, ओपन इकोनॉमी नहीं है अभी। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, वही हमने यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने को भी आएगा एग्जाम के अंदर तो पहले यही फॉर्मूला लिखेंगे। एडी के 3 कंपोनेंट हुए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। कंजम्पशन के अंदर कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक्सप्लेन कर देंगे, गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है इक्विलिब्रियम लेवल को दो तरह से अफेक्ट कर रहा है व्हिच इज परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स, वो एक्सप्लेन। नाउ लेट अस लुक एट द इक्वेशन ऑन द राइट साइड।
AD बोल रहा है इक्वल हुआ C प्लस आई प्लस डी, आई इसके अंदर अभी भी हमने इंड्यूस को 0 लिया हुआ है और सिर्फ ऑटोनॉमस लिया हुआ है, तभी आई के ऊपर डैश है। तो AD इक्वल्स टू आया, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला था C डैश प्लस बी वाई। अब हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया है, तो हमारी इनकम पे टैक्सेस लग रहे हैं और ट्रांसफर्स भी लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे YD लिखा है। तो YD को अगर हमको कन्वर्ट करना है इनकम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस को प्लस कर देंगे और ट्रांसफर्स को माइनस कर देंगे, और प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज ऑल्सो ऑटोनॉमस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनकम लेवल से तो इन्फ्लुएंस है नहीं, जो गवर्नमेंट परचेजेस करे गुड्स एंड सर्विसेज वो किसी इनकम लेवल से तो इन्फ्लुएंस है नहीं। इट इज आल्सो एन एक्सोजेनस वेरिएबल एंड इट इज नॉट एन एंडोजेनस वेरिएबल, इसलिए इसके अंदर जी के ऊपर भी डैश है। अब हमारे पास तीन इंडिकेटर्स हुए जिसके ऊपर डैश है, दैट इज सी डैश, आई डैश और जी डैश। इनको हमको तीनों को हम ले रहे हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड टू इनकम। तो ट्रांसफर्स के ऊपर भी डैश आ गया, प्लस सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश। अब हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर यही सारी चीजें पुट करी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए डैश प्लस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी इंटू वाई। 1 माइनस टी क्योंकि हम टैक्सेस अभी भी माइनस कर रहे हैं, टैक्सेस इज रिलेटेड टू इनकम लेवल ऑल्दो ट्रांसफर्स इज नॉट रिलेटेड। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, AD इक्वल्स टू y होगा, और y के अंदर इक्वल कर देंगे a डैश प्लस सी 1 माइनस टी इंटू वाई। तो y इज इक्वल्स टू हो गया ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये y की इक्वेशन एंड दिस y की इक्वेशन? इस y की इक्वेशन के अंदर हमारी इक्वेशन सिर्फ ये थी 1/1 माइनस b इंटू a। इस इक्वेशन के अंदर वी हैव y is equals to a dash upon 1 minus c bracket 1 minus t. I do hope this is clear. ये जहां पर c लिखा है ना, that is a dash plus c bracket 1 minus t, इसको ये c को b कर दो क्योंकि this is MPC only. जो MPC हम इन्फ्लुएंस कर रहे, MPC जो इन्फ्लुएंस कर रहा था कंजम्पशन लेवल को, कंजम्पशन फंक्शन दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है और एक इंड्यूस कंजम्पशन होती है। तो C डैश प्लस B Y प्लस ट्रांसफर्स माइनस टैक्सेस प्लस I डैश प्लस G डैश, यही B यहाँ पे गलती से C लिख गया है, तो A डैश प्लस B 1 माइनस T ब्रैकेट Y, और AD को हमने बाद में कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था 1/1 माइनस b इंटू a, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया a डैश अपॉन 1 माइनस b इंटू 1 माइनस t। 1 माइनस t किसकी वजह से हुआ, टैक्सेस की वजह से। सो आई डू होप ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्लियर हुई है। अब देखते हैं हम गवर्नमेंट की मल्टीप्लायर। अभी हमने नॉर्मल मल्टीप्लायर देखा था जो कि कंजम्पशन से इन्फ्लुएंस था और इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लुएंस था। अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स से गवर्नमेंट जो है मल्टीप्लायर को इन्फ्लुएंस करती है तीन तरह से, चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस होती है, ये चेंजेस इन ट्रांसफर्स, ये चेंजेस इन इनकम टैक्स। अगर गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ जाएंगी तो हमारा क्या होगा, C प्लस आई प्लस जी के अंदर गवर्नमेंट बढ़ रही है तो फिर AD भी बढ़ जाएगा विच विल फर्दर लीड टू राइज इन इनकम लेवल, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन करके चलना है। तो गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर देखते हैं कैसे अफेक्ट करता है हमारे इनकम लेवल के ऊपर। तो इसके अंदर अभी हम केस ले रहे हैं जहाँ पे हम चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेजेस ले रहे हैं और चेंजेस इन ट्रांसफर्स और इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करें। एक चीज देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इनकम लेवल के ऊपर। So consider first case government purchases where the initial level of income is YD. An increase in government purchases is a change in autonomous spending and therefore it will shift the aggregate demand schedule upward by the amount equals to increase in the government purchases. और इस अमाउंट से इंक्रीज होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। एट द इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम the demand for goods exceeds output and correspondingly firm will expand production until the new equilibrium level is reached in the economy. By how much does income expand? Recall the change in equilibrium
income will equals to aggregate demand. अभी हमने पीछे निकाला था कि y dash is equals to change in government plus c bracket 1 minus t into change in y. ये c वही MPSE है क्योंकि small c से डिनोट किया हुआ है. काफी बुक्स के अंदर ये a से भी डिनोट होगा, स्मॉल a या फिर c डैश या फिर b या फिर c. ये स्मॉल c है इसलिए इसका मतलब MPC ही है. जो यहाँ पे पीछे यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन करी थी b और c की, तो ये भी b है. Where the remaining, यहाँ पे हमने वो ये एज्यूम किया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है और ट्रांसफर्स जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये कांस्टेंट रहेंगी. Thus the change in equilibrium level of income is change in income equals to 1 upon 1 minus c upon 1 minus t into change in government spending. This is what the government multiplier is. कि गवर्नमेंट के अंदर परचेजेस होंगी तो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. ये हमने अभी पीछे यहाँ पर भी देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर अगर परचेजेस सेक्टर इंक्रीज, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस से करेगी आउटपुट लेवल को भी इन्फ्लुएंस ऐसे ही कर रही है. ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 माइनस सी और t माइनस s 1 माइनस t. तो यहाँ पर ही वही आ रहा है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं इनकम लेवल, इट विल लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर चेंज हो रही है उसकी वजह से इनकम लेवल भी चेंज होगा. बट कितना, ये इतना ही होगा, 1 अपॉन 1 माइनस c 1 माइनस t. यही है मल्टीप्लायर गवर्नमेंट का. Let us look at this diagram and it will be more clear. हमने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट जो है अपनी परचेजेस इंक्रीज करे. If the government is increasing its purchases, तो हमारा AD जो है वो शिफ्ट हो गया AD डैश पर. अगर हमारा AD जो है AD डैश पर शिफ्ट हो गया तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी शिफ्ट हो गया E से E डैश पर, क्योंकि इसी पॉइंट पर Y जो है इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, विच इज A डैश माइनस A. Where we have introduced this to denote the multiplier in the presence of income taxes, और हमारा multiplier हो गया 1 upon 1 minus c 1 minus t. This is the multiplier in case of government.